Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine and enjoying good health. Dear students, today we are going to start our chapter number 14, that is transition elements, D and F block elements. Today we will discuss transition elements, why they are called transition elements, series of transition elements, why is zinc group included in transition elements, coinage metals are transition elements, justify the statement, types of transition elements, general features of transition elements, electronic distribution of D block elements, electronic distribution of 4D and 5D series, irregularities in configurations, binding energies, variable oxidation states, catalytic activity, and at the last, there is an assignment for you people. Let us start our today's lecture. First of all, we will see what are transition elements. Transition elements are actually the elements which have partially filled d or f orbitals, either in their atomic state or in their common oxidation states. These elements are called transition elements. We can also define transition elements as the elements which lie between S and P block elements. That is, these are also known as D block or F block elements. Simply, we can say that transition metals elements are those elements which have d और f orbitals in the process of their completion. आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं वो तमाम एलिमेंट्स जिनका d और f ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल नहीं है, वो हाफ फिल है, यानी कि d की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 10 ना हो, इनके इन बिटवीन जो वैल्यूज हैं वो एलिमेंट्स आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे. F ऑर्बिटल में भी F1 से लेकर F13 तक की जो वैल्यूज हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे. दूसरा, अगर हम प्रॉपर्टीज पे डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट्स जो कि जिनकी प्रॉपर्टीज S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान लाई कर रही हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं. Why they are called transition elements? Because their properties are in between of ionic bonds and covalent compounds. Means strongly electropositive elements of S block which form ionic bonds and P block elements which form covalent compounds. इन दोनों के दरमियान में जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज हैं वो ये एलिमेंट्स शो करते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है. Let's have a look on this periodic table. These are S block elements, group 1 and 2, and definitely you people know they are highly electropositive elements and form ionic bonds. These are P block elements and they form covalent bonds or covalent compounds. Now, in between this S and P block elements, these elements are lying and they are called D block elements. It means कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन बिटवीन है एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की. इसी तरह से ये आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं. अब आपको समझ आ गई कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं. पी ब्लॉक एलिमेंट्स कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं और जो डी ब्लॉक हैं उनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. नाउ सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा हुआ है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने 3 सीरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम से with atomic number 21 and or end has zinc पे with atomic number 30, और इसको हम 3D सीरीज का नाम देते हैं.
Second series starts from yttrium, 39 atomic number, and at cadmium with 48, and this is regarded as the 4D series. Third is 5D series, and it starts from lanthanum with 57 atomic number and at mercury with 80 atomic number. इसमें हमने लैंथेनाइड्स को ओमिट कर दिया है, जिनको हम रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की डिवीजन हमने दो सीरीज में की हुई है, सीरियम टू ल्यूटीशियम, इसको हमने एफ सीरीज का नाम दिया हुआ है, और सेकंड जो है वो एक्टिनियम से लोरेंटियम है, जिसको हमने एक्टिनाइड्स का नाम दिया हुआ है, और ये 5F सीरीज कहलाती है। ये अगर आप देखें तो ये आपके पास 3D सीरीज है जो कि स्कैंडियम से जिंक तक है, ये 4D सीरीज है जो कि यट्रियम से कैडमियम तक है, और ये 5D सीरीज है जो कि आपके पास, इसमें लैंथेनम को हमने ओमिट कर दिया, वो नीचे चला गया, और यहाँ पे ये आपके पास HF से स्टार्ट होके मरकरी तक जा रही है। एफ ब्लॉक सीरीज जो है ये आपके पास 4F और 5F सीरीज हैं, ये सीरियम से शुरू होके ल्यूटीशियम तक जा रही है, और देन आपके पास ये 5F सीरीज भी डाल दी गई है। नेक्स्ट इज, अगर अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन पता चल जाएगी। ये आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। ये आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। इन दोनों के दरमियान में ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये फर्स्ट सीरीज कैंडियम से जिंक तक 3D है, यट्रियम से कैडमियम तक 4D है, लैंथेनम को हमने ओमिट कर दिया है, HF से मरकरी तक 5D सीरीज है, और देन आपके पास 6D सीरीज HF से MT तक है। एफ ब्लॉक सीरीज में ये आपके पास 4F सीरीज है, और ये आपके पास 5F सीरीज है जो कि सीरियम से ल्यूटीशियम तक है और थोरियम से LR तक रेंज कर रही है। नेक्स्ट इज outermost configurations. General outermost configuration of metals are, अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी n-1, डी की जो वैल्यू है वो 1 से 10 के दरमियान होगी, और ns2 होगा, सॉरी इट इज ns2, ये s की पावर 2 है, ये बेस में नहीं है बल्कि ये ऊपर है, सॉरी इट इज अ टाइपिंग एरर। सेकेंड सीरीज जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1 से n-2 f1 से 14 तक है, और ns2 में कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये n-1 का क्या मतलब है? n-1 का मतलब है कि अगर आपके पास ये आप 4s2 है तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये जो d होगा ये 3d बनेगा, और इसकी वैल्यू 1 से 10 के दरमियान आएगी, यानी कि 4s2 आपके पास कंप्लीट होगा, और इससे एक पीछे स्टेप पे 3d सीरीज का नाम आएगा। इसी तरह से अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? n-1 d1, इट इज d1, सॉरी ये बेस में नहीं है, ये पावर है d1, n-2 f1 to 14 ns2। इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज ns2 इज 6s2, उसमें से 1 माइनस करें तो ये आपके पास 5d1 हो जाएगा, 5d सीरीज हो जाएगी, और आपके पास उससे भी एक स्टेप पीछे जाएंगे तो ये 4F की सीरीज बन जाएगी। ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशंस है। जिंक ग्रुप को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट कहा है। व्हाई जिंक ग्रुप इज इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स? जिंक, cadmium and mercury are not regarded as the transition elements because they have completely filled d orbitals. अभी हमने पीछे डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल, जिनका d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। बट जिंक और कैडमियम की अगर हम बात करें तो इनके आउटर मोस्ट शेल d ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक, बाय डेफिनेशन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा गया है? बिकॉज
इन ये जो कम्प्लेक्स बनाते हैं, उन कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो अमोनिया, हैलाइड आइंस और अमाइंस के साथ बनाते हैं, उनके केमिकल बिहेवियर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज शो होती हैं। मींस देयर बिहेवियर रिजेंबल जिंक ग्रुप का जो बिहेवियर है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो रिजेंबल करता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बिहेवियर से। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजेंबलेंस इन केमिकल बिहेवियर, these zinc group is included in transition elements. I hope so कि आपको समझ आ गया होगा। Second is coinage metals are transition elements. Justify the statement. सेम जैसे ऊपर हमने कहा है, वो यहाँ पे बात आ रही है कि जो कॉइनेज मेटल्स हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं कॉइनेज मेटल्स कौन सी हैं। कॉइनेज मेटल्स आर कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। वो मेटल्स जो कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं, दे आर कॉइनेज मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉइनेज मेटल्स जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। क्यों? द रीजन इज कि जब ये अपने कंपाउंड्स बनाती हैं तो इसमें कॉपर यूजुअली +2 फॉर्म में मोर ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। +2 फॉर्म में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 है। 3d9 का मतलब है कि ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। इसका मतलब है बाय डेफिनेशन ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। सिल्वर की अगर हम बात करें तो Ag+2 फॉर्म में ये कंपाउंड बनाता है, कम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d9 है। 4d9 का मतलब है कि ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, सो इट इज इंक्लूडेड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सेम इज विद गोल्ड। गोल्ड Au+3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d8 है। 5d8 means again it is not completely filled, तो by definition ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ जाएगा। ऑल्दो ये तमाम जो कॉइनेज मेटल्स हैं, ये जब मेटल फॉर्म में हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है। तो ये मेटल फॉर्म में आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करती। बट ये कॉइनेज मेटल्स जब कम्प्लेक्सेस बनाती हैं तो वहाँ पे ये बाय डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में फॉल करते हैं, सो दे आर इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Next are periodic table. Position of D block elements in the periodic table. ये अभी हम पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, दोबारा इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं और मेटल्स हैं, और ये आयोनिक बॉन्ड बनाती हैं। ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 8 तक, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 8 तक जो आपके पास हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। इनके दरमियान में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई करते हैं। यहाँ से नीचे जो है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लाई करते हैं। ये पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है ऑन द basis of their properties: typical transition elements and non-typical transition elements. टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम अभी देख लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि जो आपके पास ग्रुप 2b और ग्रुप 3b है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d10। कैडमियम की 5s2 4d10। मर्करी की 6s2 5d10। 3b ग्रुप की स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर के साथ 4s2 3d1, यट्रियम 5s2 4d1 और लैंथनम 57 के साथ 6s2 एंड 5d1। अब देखें बाय डेफिनेशन, अगर आप ये देखें तो ये सारा का सारा डी ब्लॉक इनका कंप्लीट है। अब बाय डेफिनेशन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन अभी हमने कहा है कि हमने जिंक ग्रुप को ऐड किया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। क्यों? क्योंकि जब ये कम्प्लेक्स बनाता है, कंपाउंड बनाता है, तो इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन 3d10 से पीछे आ जाती है, इनकम्प्लीट आ जाती है, सो इट इज रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ व्हाट आर
यहाँ पे ये जो अभी हमने 2B ग्रुप पढ़ा है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसमें ये इनके पास पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल्स नहीं है बल्कि कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन ये जब आयोनिक स्टेट में आते हैं तो ये कुछ प्रॉपर्टीज दे डोंट शो टिपिकल प्रॉपर्टीज, ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तो ये कोई टिपिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। इसी तरह से 3B में कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनम जो है ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो नहीं करते एलिमेंटल फॉर्म में, बट जब ये कंपाउंड स्टेट में आते हैं तो ये ट्राई पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ट्राई पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट हो जाता है। ये जब 3 इलेक्ट्रॉन्स में जाएंगे, +3 फॉर्म में आएंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4s0 3d0, ये क्या हो जाएगा 5s0 4d0, और ये लेंथेनम 6s0 5d0। अब क्योंकि इनके d ऑर्बिटल 0 फॉर्म में आ गए हैं तो यहाँ पे अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये दे डोंट शो, दे शो ट्राई पॉजिटिव आयंस Sc+3, yttrium+3 and lanthanum+3. In this way, they don't have any electron in the d orbitals. इनका d orbital empty हो जाएगा। यहाँ पे अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, इनके d ऑर्बिटल्स या तो कंप्लीटली फिल्ड हैं या बिल्कुल एम्प्टी हैं, जीरो है। On the basis of this characteristics that they have completely filled d orbital and they have empty d orbitals, इनको हमने नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दिया है। बाय डेफिनेशन 2B और 3B एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आते, बट ड्यू टू some properties, due to their some properties they resemble with transition elements, so they are regarded as non-typical transition elements. टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होंगे जो कि बाय डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं और सारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। नॉन टिपिकल क्या होंगे, जो बाय डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आ रहे, like 2B and 3B, but they show some properties that are resembling with transition elements, so they are called non-typical transition elements. Now हम इनमें थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं? ग्रुप 2B और 3B को हमने नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा है। इनको क्यों हमने कहा है? क्योंकि इनका पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल नहीं है एलिमेंटल या आयोनिक स्टेट में। अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि 2B में जो है ये क्या है कि इसमें कंप्लीटली फिल्ड है ऑर्बिटल्स, और इसमें जो है 3B में ये आपके पास टोटली एम्प्टीड हैं d ऑर्बिटल्स, इसलिए ये इसमें नहीं आते। ये टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कुछ हद तक शो करते हैं। बाय डेफिनेशन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आते, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये कलर्ड कंपाउंड्स नहीं बनाते, लाइक कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन इज द टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि +2 से ऊपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +3, +4, +5, +6, वो आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बाय डेफिनेशन आती हैं। इसी तरह से ये पैरामैग्नेटिज्म भी शो नहीं करते। नाउ कम टुवर्ड्स टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? 4B, 5B, 6B, 7B, 8B और 1B, ये आपके पास टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इन तमाम ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं उनका d ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होगा, एलिमेंटल स्टेट में भी और आयोनिक स्टेट में भी। They show typical properties of the transition elements. Sorry, they show the typical properties. ये not covered जो है वो गलती से आ गया है। They show typical properties of transition elements. They show typical properties of the transition elements. Then they form colored compounds due to involvement of d orbitals. इसमें d orbital involved ही नहीं है, इसलिए ये colored compounds भी नहीं बनाते। They show variable oxidation states. Variable oxidation state का मतलब क्या है? +1, +2, +3, +4, +5, +2 से ऊपर की जो variable
ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं। ये पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। दे शो पैरामैग्नेटिज्म बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स. This is the comparison of non-typical and typical transition elements. Next is general features of transition elements. जनरल फीचर्स क्या हैं? ये मेटालिक इन नेचर है। ये जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक टाइटेनियम, क्रोमियम, आयरन, निकल, कॉपर, मॉलिब्डेनियम, जिरकोनियम, एनबीटीबी और थोरियम। ये सारी हमारी इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तमाम जो हैं वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं जिनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हैं। ये गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ये एलॉय बनाते हैं दूसरी एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल के साथ और उनकी प्रॉपर्टीज इनहैंस हो जाती हैं। कुछ एलिमेंट्स के अलावा ये सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। इनके जो आयंस और कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में भी और सॉल्यूशन स्टेट में भी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें जो जर्नल फॉर्मूला है वो क्या है, NS2, देन डी ऑर्बिटल जो है वो उसमें N-1 होगा और इसी तरह से NS2 जिसमें आपके पास N-1 D10 होगा। D1 से D10 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें आएगी। हाँ जी, जो सबसे पहला आपके पास है वो है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। बाकी जो डी के ऑर्बिटल्स हैं आपको पता है डी के 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें जो एक ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो खाली हैं। डी ऑर्बिटल्स के नाम क्या क्या होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। दीज आर द डी ऑर्बिटल्स नेम्ड। स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम पे एटॉमिक नंबर 22 है। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे 3d1 के साथ 3d1xy और इसी तरह से जो नेक्स्ट 3d ऑर्बिटल है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है। बेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे क्या है, 3d1xy, 3d1z में भी 1 इलेक्ट्रॉन और 3dxz में भी 1 इलेक्ट्रॉन। दैट इज आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, सब ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तो दे विल प्रेफर टू स्टे इन सेपरेट फॉर्म्स। वो अलग अलग रहने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमियम। क्रोमियम में 24 एटॉमिक नंबर है। अब होना क्या चाहिए कि इस समय अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो होना क्या चाहिए कि ये 3d(x²y²1) और 3d(z²1) होना चाहिए। यही होना चाहिए ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे बाय डेफिनेशन है। बट अब यहाँ पे क्या आ गया, गौर से देखिए, 3d1, 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 3d1 और 3d1। दैट इज आपके पास
अगर हम क्रोमियम को देखें तो होना ये चाहिए कि यहाँ पे 3d(x²y²1 होना चाहिए, लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो 3d1z2 है। देयर इज एन एक्सेप्शन। हुआ क्या है, यहाँ पे ये जो 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से जंप करके 3d में आ गया है, यानी कि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s1 3d1 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 एंड 3d1, दैट इज 3d5 एंड 4s1। ऐसा क्यों हुआ है? It is because half-filled orbitals are more stable than partially filled orbitals। ये बात हमने पीछे भी एक जगह पढ़ी है कि अब आपके पास 4s2 जो है वो completely filled होगा और ये 3d4 अगर आए तो ये partially filled होगा। अब जब ये 3d5 हो गया है तो ये half-filled orbital हो गया है and half-filled orbitals are more stable। टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ से 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d ऑर्बिटल में आ गया है ताकि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन जाए और इसकी स्टेबिलिटी इनहेंस हो जाए। नेक्स्ट मैंगनीज में 25 है, अगेन फिर यहाँ पे वही करेक्टर होगा, ये 4s2 और 3d5 होगा। मीन्स कि जो एक इलेक्ट्रॉन आया है वो कहाँ पे पेयर हो रहा है, 4s2 में आके उसने पेयरिंग की है। नेक्स्ट आयरन, इसमें आप देखेंगे 4s2 देन आपके पास 3d2 और बाकी 3d1 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 एंड 3d1। कोबाल्ट में अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 4s2 और 3d2 3d2 3d1 3d1 और 3d1 है। निकल में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 4s2 और 3d2 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 3d1 एंड 3d1। नेक्स्ट इज कॉपर। यहाँ पे फिर आपको एक एक्सेप्शनल बिहेवियर नजर आएगा। होना क्या चाहिए था कि ये जो एक एडेड इलेक्ट्रॉन है वो आना चाहिए था 3d2(x²y² में और 3d1 रहना चाहिए था, बट हुआ क्या, 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके लास्ट ऑर्बिटल 3d2 में चला गया और इससे क्या हो गया, d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि d ऑर्बिटल जो हैं अगर वो कंप्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो तो वो मोर स्टेबल होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करें एज कंपेयर टू पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके पास पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपके पास पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये इतनी स्टेबल नहीं है। But this is half filled electronic configuration and this is completely filled electronic configuration, so they contribute more towards the stability of transition elements। यहाँ पे आप देखिए 4s1 है, जस्ट टू गेन मोर स्टेबिलिटी यहाँ 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d2 में आ गया है। नेक्स्ट इज जिंक। जिंक में अगर आप देखेंगे तो फिर आपके पास एक जो एडेड इलेक्ट्रॉन है वो 4s में जाके उसने पेयरिंग कर दी है। यहाँ पे ये आपको यही स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग करके जरा ज्यादा अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। ये आपके पास स्कैंडियम में ये आपके पास आर्गॉन जो है वो बिलोंग करता है, एक ग्रुप एलिमेंट है, नोबल गैस है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपके पास ये 3d1 आएगा और ये 4s2 आएगा। देन टाइटेनियम में 3d2 एंड 4s2 है, वेनेडियम में 3d3 है और 4s2 है। क्रोमियम में अब आप देखें कि क्या हुआ है, s से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके आ गया है और ये क्या है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। नेक्स्ट मैंगनीज में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो वो एडेड इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, 4s2 में गया है। आयरन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो वो क्या है, 3d सीरीज में आके उसने पेयरिंग कर दी है। नेक्स्ट कोबाल्ट में एक और इलेक्ट्रॉन आया, उसने 3d में पेयरिंग कर दी, 3d7 4s2 हो गया।
निकल में अगेन 1 इलेक्ट्रॉन मोर आया, तो उसने क्या कर दिया है, 3d8 कर दिया है और 4s2 कर दिया है। मींस यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हैं d ऑर्बिटल में। बट जब कॉपर की बारी आई तो कॉपर में आपके पास s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया d ऑर्बिटल में, और उससे क्या हुआ कि d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अब d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो ये मोर स्टेबल हो गया है। जिंक में एक इलेक्ट्रॉन एडेड जो है वो 4s में जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4d एंड 5d सीरीज। अभी हम टेबल देखेंगे, उसमें हम 4d और 5 ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसमें हम इनके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। During electronic distribution, we will see that some elements deviate from normal electronic configuration। जैसे अभी हमने पीछे बात की है, इस तरह से कुछ यहाँ पे भी आपको डेविएशंस नजर आएंगी, हम उन डेविएशंस को भी देखेंगे। इसी तरह से अब आगे अब हम देखते हैं जब कॉपर फैमिली, तो वहां पे भी हमारे पास डेविएशन नजर आएगी। नेक्स्ट अभी हम इन सीरीज को जरा देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ये आपके पास 3d सीरीज है, ये आपके पास 4d सीरीज है और ये 5d सीरीज है। पहले हम 3d सीरीज में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपके पास डेविएशन आ रही है। अगर आप देखें तो स्कैंडियम, अभी ये सारी हम पीछे डिटेल से कर चुके हैं, 3d1 4s2। नेक्स्ट स्टेप में ये 3d2 और 4s2 हो गया, फिर 3d3 हो गया 4s2। लेकिन यहाँ पे फिर ये 3d5 हो गया, और ये केस कौन सा है, क्रोमियम का है। ये अभी हमने एक्सप्लेन किया है क्यों है, क्योंकि s से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप किया और ये 3d5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गया और ये मोर स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से अगेन आपको जो एक्सेप्शन नजर आएगी वो कॉपर में नजर आएगी। यहाँ पे 3d8 के बाद ये फौरन 3d10 हो गया बाय प्रोमोशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s to 3d। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि इस तरह से ये 3d10 हो जाएगा और 3d10 जो है वो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है और ये मोर स्टेबल है। ये इसका मतलब है कि इस फैमिली में जो आपको एक एक्सेप्शन बिहेवियर नजर आया है वो कहाँ पे नजर आया है, क्रोमियम में नजर आया है और कॉपर में नजर आया है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और यहाँ पे ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है और ये मोर स्टेबल है। अब हम देखते हैं अपनी 4d सीरीज में। 4d सीरीज में अगर आप देखें तो आपके पास यट्रियम है एटॉमिक नंबर 39 के साथ और ये 4d1 5s2 है। देन जिरकोन है 4d2 5s2 के साथ। देन Nb है, मोलिब्डेनियम है। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो आपके पास एक्सेप्शनल बिहेवियर कहाँ पे है, ये देखें, ये 4d4 और ये 5s1। उसके बाद क्या हुआ, ये 4d5 और ये 5s1। मींस यहाँ पे अगेन आपके पास s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया है और यहाँ पे ये क्या बन गया, 4d5 और 5s1। दैट इज अगेन यू गॉट a exceptional behavior, that is half filled orbitals are more stable than completely filled orbitals। यहाँ पे ये आपके पास एक्सेप्शनल बिहेवियर आ गया है 4d सीरीज में। बाकी आपके पास जो है वो उसी तरह से है। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 4d8 है और 5s1 है। अब यहाँ पे जो एक एडेड इलेक्ट्रॉन था उसने अगेन 4d10 में इसकी 5s का भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक एडेड इलेक्ट्रॉन भी आ गया और इस तरह से ये भी इसके कंप्लीटली फिल्ड स्ट्रक्चर में आ गया है और ये मोर स्टेबिलिटी को इनकाउंटर कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको करके दिखाऊं तो ये इसी तरह से यहाँ पे भी आपको ये एक्सेप्शनल बिहेवियर नजर आएगा। नाउ कम टूवर्ड्स 5d सीरीज। 5d सीरीज में आपको ये एक्सेप्शनल बिहेवियर देखें जरा कहाँ पे नजर आ रहा है। अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो क्या है, जीनॉन से 5d1 6s2। देन हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो 4f14 5d2 6s2। देन 4f14
3d3 and 6s2, then 4f14, 5d4 and 6s2 है। देन उसके बाद 4f14, 5d5 एंड 6s2। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 5d5 दैट इज ये हाफ फिल्ड है, तो ये मोर स्टेबल है। अगेन अगर आप यहाँ पे देखें तो 5d6, 5d7, 5d9 एंड 6s1। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर नजर आएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, 5d9 है और ये 5d9 क्या है, एक एडेड इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया। नेक्स्ट स्टेप में जो एक एडेड इलेक्ट्रॉन है वो 5d10 हो जाएगा और ये जो 5d10 है ये इसकी स्टेबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा, कंप्लीटली फिल्ड है और ये मोर स्टेबल है। अब आप देख सकते हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर 3d सीरीज में क्रोमियम और कॉपर में आपको नजर आएगा, 4d सीरीज में मोलिब्डेनियम और पीडी लेड में नजर आएगा, देन 5d में आपको पास ये प्लैटिनियम और गोल्ड में ये एक्सेप्शनल बिहेवियर नजर आएगा। Next is irregularities in electronic configurations. Explain the factors which determine the stability of electronic configuration of transition elements. अभी हम यहाँ पे वो फैक्टर्स देखेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी को डिटरमिन करते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं ऑर्बिटल्स को। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है, 4s1 है, ना कि 3d4, 4s2। क्यों? क्योंकि s से एक इलेक्ट्रॉन 5 में गया और ये हाफ फिल्ड और गया और इस तरह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया। कॉपर में 3d10 है और 4s1 है, जबकि होनी 3d9 और 4s2 है। होना क्या था कि s से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और ये 3d10 हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया और ये ऑर्बिटल मोर स्टेबल हो गया। अब इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4d और 5d सीरीज में है। इनके अलावा ये जो स्टेबिलिटी है इसके लिए कुछ और फैक्टर्स भी हैं। वो कौन से हैं? न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शंस, shielding of one electron by several other electrons, inter-electronic repulsions, exchange energy forces. These are some other factors which judge the stability of electronic configurations. फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये फैक्टर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को जानने के लिए। ये सारे फैक्टर्स और कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कि फाइनल स्टेबिलिटी को जज करने में, डिटरमिन करने में हमारा हेल्पफुल होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो बाइंडिंग एनर्जीज हैं। बाइंडिंग एनर्जीज असल में क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक दूसरे से बाइंड करना, एक दूसरे से अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम बाइंडिंग एनर्जीज कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमें पता है टफ हैं, मैलिएबल हैं एंड डक्टाइल हैं। ये मेटल्स टफ हैं क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा हैं। बाइंडिंग एनर्जीज क्यों ज्यादा हैं इसको हम देखते हैं। s ऑर्बिटल जो आउटर मोस्ट हैं वो भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एज वेल एज d ऑर्बिटल्स। क्या मतलब है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट d ऑर्बिटल्स प्लस s ऑर्बिटल्स, ये दोनों ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इट मीन्स कि दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इस तरह से उनकी बाइंडिंग एनर्जीज भी ज्यादा हो जाएंगी। बाइंडिंग एनर्जीज का वेरिएशन क्या है हमारे पास? अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं डी ब्लॉक सीरीज में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज करते हैं 5th ग्रुप तक, दैट इज वेनेडियम फैमिली में, और 6b दैट इज क्रोमियम फैमिली में। इसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाती है और ये पेयरिंग 2b पे जाके हमारे पास बिल्कुल 0 पे आ जाती है। इट मीन्स कि जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो भी पेयरिंग के साथ साथ होगी। अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं तो वो फिर बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी पेयर्ड हैं। बॉन्ड सिर्फ
उन इलेक्ट्रॉन्स से बनाना है जो अनपेयर्ड है। जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो जाएगी हाफ शेल्स के बाद, 3d5 के बाद या 5d5 के बाद या 4f7 के बाद, उसके बाद पेयरिंग जब शुरू हो जाएगी तो फिर वो अपना बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब है कि बाइंडिंग फोर्सेस भी डिक्रीज हो जाएंगी। इसको हम जरा इस ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ देखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें आपके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि इसकी ये सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे तो इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मींस कि ये 2 बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो आपके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मींस कि ये 3 बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखता है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 और ये 6। इट मींस इट हैव द एबिलिटी एंड मैक्सिमम एबिलिटी टू फॉर्म मैक्सिमम बॉन्ड्स। इट मींस इसकी बाइंडिंग एनर्जीज क्या होगी, मैक्सिमम होगी, बिकॉज इट कैन मेक 6 बॉन्ड्स। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, इसका मतलब है सिर्फ 5 बॉन्ड बन सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एक डी ऑर्बिटल की भी पेयरिंग होगी, मींस कि अब सिर्फ 4 बॉन्ड बन सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 2 डी ऑर्बिटल्स में पेयरिंग हो गई है, मींस सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो ये सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट निकल है, इसमें 3 डी ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 2 अनपेयर्ड हैं, इसका मतलब है कि ये 2 बॉन्ड बना सकता है। कॉपर में अगर आप देखें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए हैं, सिर्फ 4s का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, जिसका मतलब है कि सिर्फ एक बॉन्ड बन सकता है। जिंक में अगर आप देखेंगे तो d ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल्स बोथ आर कंप्लीटली फिट। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जीज जो हैं या जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। ये जो सारा आपने टेबल देखा है, इसको हम अब ग्राफ में देखते हैं। ये देखिए, स्कैंडियम से शुरू हो रहा है, टाइटेनियम और वेनेडियम, क्रोमियम। यहाँ पे आके ये आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं अनपेयर्ड, और ये मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जीज को शो कर रहा है। उसके बाद ये बाइंडिंग एनर्जीज कम हो रही हैं, और अगर आप यहाँ पे आके देखें तो जिंक की बाइंडिंग एनर्जीज जो हैं वो बिल्कुल जीरो हो गई हैं। क्यों जीरो हो गई हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि जिंक में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है टू मेक द बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम देखें सीजियम के केस में, तो यहाँ पे हमारे पास 5d सीरीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर मैक्सिमम हो रहे हैं यहाँ तक, और ये मैक्सिमम बॉन्ड्स बना लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो गई है, और ये मरकरी तक आके बिल्कुल नंबर ऑफ बॉन्ड्स या जो बाइंडिंग एनर्जीज हैं वो जीरो हो जाएंगी, बिकॉज सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हो गए हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी जैसे हमने बात किया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, दैट इज कि ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये 3d सीरीज जो हैं, इसमें +2 से जो हायर स्टेट्स हैं उनको यूजुअली हम कहते हैं कि ये आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और +2 से ज़्यादा की जो हैं वो उसमें आपके पास 4s के भी इलेक्ट्रॉन्स शामिल होंगे बॉन्डिंग में, दैट इज वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बिकॉज इसमें d इलेक्ट्रॉन्स एंड s इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए ये आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। होता क्या है कि जो d और s ऑर्बिटल्स हैं वो वेरी क्लोज टू ईच अदर हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप कर देते हैं s और d ऑर्बिटल्स में, और एज अ रिजल्ट इनमें दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। सॉरी। नेक्स्ट 3d सीरीज में अगर हम देखें तो मैंगनीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 तक। इसके अलावा +2 और +3 जो है वो ज्यादा कॉमन है। मिडिल तक जाके ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से इंक्रीज करती हैं और उसके बाद डिक्रीज करती हैं, इसमें वही पेयरिंग वाला दोबारा हम डालेंगे।
नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही हैं। स्कैंडियम 3D14S2 है और ये आपके पास +2 या +3 की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2 कब होगी? जब ये सिर्फ 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और +3 कब होगी? जब इसमें s 4s के भी 2 इलेक्ट्रॉन और 3d का भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। टाइटेनियम में 3d3 है और 4s 2 है। इसमें क्या है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी इट इज 3d2, इट इज नॉट 3d3, इट इज 3d2, इट इज 3d2। अब 3d2 और 4s2, अब इसमें जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? सिर्फ 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो तो +2, 3d का भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो 3d +3, और अगर 3d के भी 2 इलेक्ट्रॉन और 4s के भी दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी। नेक्स्ट इज वेनेडियम 3d3 एंड 4s2, सेम उसी पैटर्न पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन 4s इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। 3d3 के भी अगर तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो ये +5 तक जाएगी। क्रोमियम में अगर आप देखें तो आपके पास +2, +3, +4 और +6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। मैंगनीज की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +1, +2, +3, +4, +5, +6 एंड +7। इसी तरह से आयरन भी आपके पास +1 भी शो करेगा। +1, +2, +3, +4, +5 एंड +6 ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कैसे शो होंगे। अगर सिर्फ s का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो +1, अगर s के दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं +2, इसी तरह से d के भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें लॉस होंगे तो ये आपके पास नंबर आएगा। अब अगर आप इसमें देखें तो मैंगनीज जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +1 से लेकर +7 तक। उसके बाद आयरन +6 तक शो कर रहा है। कोबाल्ट आपके पास क्या शो कर रहा है? +2, +3, +4 और इसमें +5 की भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। निकल में अगर आप देखें तो आपके पास इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2, +3 एंड +4 हैं। कॉपर में अगर आप देखें तो आपके पास +1, +2 और रेयरली इसमें +3 भी एग्जिस्ट करती है। देन जिंक है, इसमें आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है। और ये सारी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हो रही हैं, इट इज बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ s orbitals as well as d orbitals. Why ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स? अभी मैंने इसका आपको आंसर बताया भी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसलिए शो करती हैं क्योंकि उनके आउटर s ऑर्बिटल्स और इनर d ऑर्बिटल्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। ये दोनों क्यों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? बिकॉज जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन टू कंसेक्टिव शेल्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। लाइक अगर आप देखें ये N3 है और ये N4 है। N3 के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 3s, 3p और 3d। 4s के जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है? 4s एंड 4p। हम ऊपर वालों को कंसीडर नहीं करें। अब यहाँ पे अगर आप देखें 4s और 3d ऑर्बिटल, इनके दरमियान में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है इन दोनों सब शेल्स में। अब अकॉर्डिंग टू n+l रूल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले 4s में जाएंगे सब शेल में और फिर आपके पास 3d सब शेल में जाएंगे। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद रिपल्जन्स भी आ जाएंगी 4s सब शेल में और इलेक्ट्रॉन्स जो 3d सब शेल्स में हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। अब इसकी वजह से जो एनर्जी है वो 4s सब शेल की वो इंक्रीज हो जाती है। दैट इज व्हाई ड्यूरिंग आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव फ्रॉम 4s। इसी वजह से
जो हमने पहले भी देखा है कि जो पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं वो 4s से होते हैं, उसके बाद 3d से होते हैं। दिस इज द रीजन कि आपके पास सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। I hope you have understand it. The next is catalytic activity. ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट क्या है? ये वो मेटल्स हैं, वो एटम्स हैं जो कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। इसके बारे में आप पिछली क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। नाउ इसकी रीजन क्या है, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट कैटालिटिक बिहेवियर शो करते हैं? बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, because of formation of the intermediate products, and also the formation of interstitial compounds which can absorb and activated to the reacting species. Transition elements क्यों catalytic activity show करते हैं? Because of variable oxidation state, because of the formation of intermediate product as well as interstitial compounds. इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? ये कंपाउंड्स की स्पेशल टाइप है जिसमें जस्ट एब्जॉर्प्शन होती है, और ये जो कंपाउंड्स हैं ये किसी और कंपाउंड को भी एब्जॉर्ब करने की, इसमें छोटे छोटे से इंटरस्टिसेस, छोटे छोटे से सुराख होते हैं, और उन सुराख में एक्टिवेटर्स आके बैठ सकते हैं और आपके रिएक्शंस को इनहेंस कर सकते हैं। कैटलिस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल में यूज होता है। निकल प्लाटिनियम प्लाटिनियम जो है वो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड सैचुरेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस में यूज होता है। MnO2 जो है वो एज कैटलिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 यूज होता है। TiCl4 जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक में यूज होता है। V2O5 जो है वो H2SO4 की मैन्युफैक्चर में यूज होता है हबर्स प्रोसेस में, जहाँ पे SO2 को SO3 में कन्वर्ट किया जाता है। सॉरी, इट्स कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आयरन को हम यूज करते हैं हैबर्स प्रोसेस में फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, जिसमें आपके पास 1% Na2O और K2O यूज होता है, और 1% SiO2 एंड Al2O3 को एज प्रोमोटर हम यूज करते हैं। MO जो है इनको हम यूजुअली प्रोमोटर्स के तौर पर यूज करते हैं। Dear students, I hope you have understand the lecture. The next is, there is an assignment for you people. Question number 1 is differentiate between typical and non-typical transition elements. Question number 2 is explain the factors which determine the stability of electronic configuration of transition metal atom. Why do d block elements show different oxidation states? Why transition elements show variable oxidation states? Explain binding energies of transition elements along with their trend along period. I hope you have understand the lecture and enjoyed it as well. Please submit your assignments on time. Thank you and have a nice day.